in America and held around $200 billion in assets. It collapsed on March 10th, the biggest lender to do so since the global financial crisis, Federal Insurance. Regulators stepped in to mitigate the damage. Any founders, investors that I've talked to is in a fundamentally different place than it was, a decade ago. And the economists are now asking the Fed will hit pause on. Every American should feel confident that the deposits will be there if and when they need them. But it has exposed some serious flaws in America's banking architecture. Hello everyone. So today we'll be discussing about the Silicon Valley Bank collapse, and this was one of the biggest banking collapse. And talking about this bank, then this bank was usually in corporate place, it used to take deposits and give out loans to corporate companies and corporate players like startup and other players. So talking about the geographical region, usually this bank used to had a quarter majorly in US, but it has clients along various locations like UK, US and India. And if you are talking about India, then I think in Nazara Technology Company, which is a company in which invests and has a subsidiary and in the stakes in gaming companies. So Nazara Technology Company had some stakes in some deposits in Silicon Valley Bank. So I will be speaking to the point like kya tha from starting scenario to end scenario, what were the economic scenarios and what were the steps taken by Silicon Valley Bank from starting to end. So talking about our first point, that is the COVID and low interest rate scenario. सो इसमें क्या हुआ था कि ड्यूरिंग कोविड हम लोग को जैसे सबको पता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पे गिर गए थे. क्यों, रीज़न क्या था इंटरेस्ट रेट्स को गिराने का? द फर्स्ट रीज़न वाज दैट टू बूस्ट द कंजम्पशन, क्योंकि कोविड में जैसे ही हम लोग के लॉकडाउन्स लग गए थे एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल आउट हो गई थी, तो थोड़े रिलैक्सेशन के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को गिराते हैं एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमर एंड बिजनेसेस विल टेक लोन. And the reason why they will take loan so as to revive the economic activity. So there was a win-win situation for individuals and even for the government side as well. So इसके वजह से क्या हुआ है, हाई बोरोइंग हुआ है इंडिविजुअल्स के साइड से. क्यों? क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट था, विच इज़ ऑलरेडी मेंशन इन द स्लाइड. सो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ही बात कर लूँ, अगर मेरे को पहले लोन अगर 2% पे मिलता था और आज मेरे को लोन 4% पे मिल रहा है, तो मेरा कंफर्ट जोन क्या रहेगा? जहाँ पे मेरे को 2% पे लोन मिलेगा वो मेरे लिए कंफर्ट जोन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरे को वहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे करना होगा. सो समवेयर ड्यू टू लो इंटरेस्ट रेट लोन there was a loan growth in consumer place, in corporate place, and due to this there was an economic expansion. But at the same time we also saw the zero COVID policy, which led to supply chain disruption, which was initiated by China. And now why I will be talking about China. First of all, China is a major player if you're talking about world trade. Why? Because if let's talk about India. So majority of our imports are coming from China. Yeah, we are shifting to other countries and making our own like make in India policies, and we are taking it. But definitely earlier at that point of time, and even in today, if you're talking about today, we are somewhere dependent on China. So even if there is any action taken by China government, it will directly or indirectly affect countries like us. And at the same time there was a origin of war between Russia and Ukraine, and apparently if you're talking about Russia and Ukraine, then Russia was a very key player in oil market, that is crude oil market. And if you're talking about both Russia and Ukraine, they used to supply in food grains to majority of the world. So जैसे ही ये दोनों कंट्रीज़ अपने लाइक वॉर में आ गए थे, इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो सप्लाई ये लोग करते थे पहले कंज्यूमर को, वो अब नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि इनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स था, जो मेजर टाइम था, ये आपका इसमें चला जा रहा था वॉर में. तो उसकी वजह से काफ़ी सारे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आए थे. एंड जीरो कोविड पॉलिसी में भी क्या हुआ था कि चाइना में कोविड केसेस बढ़ गए थे, तो उनकी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग एक भी कोविड का केस टॉलरेट नहीं करेंगे. तो जिसकी वजह से कहीं भी कोविड केस का स्पाइक होता था वहाँ पर लॉकडाउन कर देता था. तो कभी भी अगर जो कोई भी इम्पोर्ट्स आना था तो वो आ नहीं पाते थे. अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जैसे मैंने बताया कि रशिया यूक्रेन की सप्लायर हैं क्रूड ऑयल के, रशिया क्रूड ऑयल का एंड रशिया यूक्रेन फूड्स के, एंड चाइना काफ़ी सारे कंट्रीज़ को इम्पोर्ट करता है. तो इसकी वजह से जब सप्लाई नहीं हो रहे थे, सप्लाई कम हो रहे थे, एंड एट द सेम अर्लियर 2 पॉइंट में मैंने क्या बात किया कि डिमांड बढ़ रहा था. इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट कर दिया है. तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट कर देता है तो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, बी इट इंडियन गवर्नमेंट और बी इट यूएस गवर्नमेंट, वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे. इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि पहले मैं इतना आराम से पहले कम रेट्स पे इतना लोन ले रहा था, अब मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा. क्यों? क्योंकि अब मेरे को लोन लेने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से मेरा डिमांड भी कम हो जाएगा. तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड कि एज सुन एज द इन्फ्लेशन रेट राइजेज, द
interest rate of the current country also rises. Why? Just to control the inflation rate. So this is the data which shows the US inflation rate. So अगर आप देखेंगे कि 2020 में क्या इंटरेस्ट रेट था एंड 2022 में क्या इंटरेस्ट रेट हो गया था, इन्फ्लेशन रेट हो गया था, आई एम रियली सॉरी, इन्फ्लेशन रेट 2020 में क्या था एंड 2022 में क्या हो गया था, 2022-23 में क्या हो गया था. सो हम लोग को अकॉर्डिंगली पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन वॉर एंड जीरो कोविड पॉलिसी एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से बहुत सारा हम लोग को इशू फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से US का इंटरेस्ट रेट भी राइज़ किया हुआ था. Now talking about Silicon Valley Bank collapse. So I'll speaking to the point कि exactly क्या क्या हुआ था, Silicon Valley Banks के steps क्या थे. So just stay with me, okay. So the first point is Silicon Valley Bank deposit rate. हम लोग को ये पहले पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इकोनॉमी में बैंक्स डिपॉजिट्स अगर लेती हैं, बीट पब्लिक बैंक, बीट प्राइवेट बैंक, तो यूजुअली उतना डिफरेंस रहता नहीं है. बट US बैंक में क्या हुआ था कि Silicon Valley Bank जस्ट टू अट्रैक्ट ह्यूज नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, हाई नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, उन्होंने अपना जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट था वो एवरेज इंडस्ट्री में जो US में चल रहा था इंटरेस्ट रेट, और जो बैंक्स, जो मेजर बैंक्स है, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करने लगा. द रीज़न एक ही था, क्योंकि उनको ज़्यादा डिपॉजिट्स चाहिए था. अब क्या हुआ था कि उनके पास डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे. कैसे? अब दो ढंग से डिपॉजिट्स आए थे. एक तो जब वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे थे तब डिपॉजिट्स आए, और दूसरा सिनेरियो तब हुआ था जब स्टार्टअप के पास उस वक्त में बहुत ज़्यादा इजी फंडिंग आ रही थी. तो वो लोग ने क्या किया था, डायरेक्टली अपने सिलिकॉन वैली बैंक को एज अ मतलब उनको बैंक समझा के उधर पैसा डिपॉजिट कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे विन विन सिचुएशन था. क्यों? सिलिकॉन वैली बैंक हाई इंटरेस्ट रेट भी दे रही थी, और इसी बहाने सिलिकॉन वैली बैंक अपना उनका जो मेन मोटिव था डिपॉजिट लेने का वो भी हो जा रहा था. बट अब ये इन फंड्स जैसे ही आया, सिलिकॉन वैली बैंक ने तो एक प्रॉमिस किया हुआ कि अपने इनको हाई इंटरेस्ट रेट देंगे स्टार्टअप को या कोई भी अपने कस्टमर्स को. सो इन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डाला पैसा. सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में यूजुअली क्या होता है कि आप बॉन्ड्स खरीदते जो गवर्नमेंट इशूड होते हैं या कॉर्पोरेट इशूड होते हैं, एंड आप उनको ईयरली या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करते रहते हैं जस्ट टू रिसीव द इंटरेस्ट रेट्स. एंड अकॉर्डिंगली फिर जब बॉन्ड आपका जब मैच्योरिटी में आ जाता है तो यू कैन सेल ऑफ द बॉन्ड, एंड नॉट बेसिकली सेल ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड मैच्योर हो जाता है ना, आपको पूरा पैसा मिल जाता है. ये बॉन्ड का एक सिंपल सा मतलब है. उस वक्त क्या हुआ था कि इसी वक्त आप पिछले साइड से अगर रिलेट करेंगे तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था. तो उसकी वजह से ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन था एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी. क्योंकि इन्फ्लेशन जब हाई है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया गया है, तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्लो डाउन हो जाना चाहिए था, जो मैंने अपने पहले पॉइंट मतलब पहले डिस्कस किया था. और जैसे ही हम लोग ने देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं तो स्टार्टअप विंटर आ गया. स्टार्टअप विंटर क्यों आया है? पहले इतने इजीली फंड्स FPIs, FDIs या इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल बहुत इजीली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको फंडिंग बहुत इजीली मिल रहा था, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इकोनॉमी में, और लोन भी अगर लेके उनको इन्वेस्ट करना था तो वो ईजी था. क्यों? क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट बहुत कम था. बट अभी अगर हम लोग सिनेरियो का बात करेंगे तो वो अपेरेंटली चेंज हो गए थे. क्यों? क्योंकि स्टार्टअप को फंडिंग आने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे. अब इसकी वजह से क्या हुआ था कि स्टार्टअप्स को फंड चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप न्यूज़ आज फॉलो करेंगे, ले ऑफ्स का न्यूज़ आ रहा है. वो आज आप US में रहें, आप इंडिया में रहें, ये मतलब ले ऑफ का न्यूज़ आ ही रहा है. सो जस्ट टू कंटिन्यू द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ स्टार्टअप हैड टू टेक फंड्स, एंड उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, जब देख रहे हैं वो बाहर के वेंचर कैपिटल फंड्स, बैंक से उनको लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो चुकी है, मॉनेटरी टाइटनिंग जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने गया SVB बैंक के पास. अब इसके वजह से क्या हुआ था, SVB बैंक का विड्रॉल्स बहुत आना स्टार्ट हो गया. अब मैं आपको एक पॉइंट पीछे लेके जाऊँगा. SVB बैंक ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था. उन्होंने इन्वेस्ट तब किया था जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम था. और अब क्या हुआ, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो इंटरेस्ट रेट राइज़ हो गए. तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो पहले के बॉन्ड्स इशू हुए थे कम इंटरेस्ट रेट में, वो अट्रैक्टिव नहीं थे. बट SVB का जितना भी पैसा था सब उधर ही अटका हुआ था. सो उस केस में क्या हुआ कि जैसे ही स्टार्टअप्स आए थे डिपॉजिट्स विड्रॉ करने के लिए, SVB बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था. दे हैड टू सेल देयर बॉन्ड्स एट लॉस. नाउ व्हाई एट लॉस? जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, आज अगर 2020 में इंटरेस्ट रेट 1% था और 2023 में इंटरेस्ट रेट हो जा रहा है लेट्स से 7%, तो डेफिनेटली मैं जो मेरे पहले के बॉन्ड्स में मैंने अगर 1% में इन्वेस्ट किया है तो उसका वैल्यूएशन या उसका जो डिमांड होता है वो अपेरेंटली गिरने लगेगा. क्यों? क्योंकि 2023 में अब मेरे को 7% के बॉन्ड मिल रहे हैं. एंड ड्यू टू बेसिकली ऑल दिस फैक्टर्स प्लेइंग, वी सॉ द कोलैप्स ऑफ SVB बैंक. बेसिकली समराइजिंग इट इन वन लाइन, उन्होंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया था, गलत इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था,
एंड अपेरेंटली जब इकोनॉमी सिनेरियो वैसे प्ले हुए जहाँ पे स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने अपना फंड्स निकालने का ट्राई किया, तो उस केस में सिलिकॉन वैली बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका जो गलत इन्वेस्टमेंट्स था, दैट इज़ लो यील्ड बॉन्ड्स में, उनको सेल ऑफ करना पड़ा, जिसकी वजह से वो लॉस रिपोर्ट किए थे एंड अपेरेंटली दे हैड टू गो फॉर बैंकरप्सी, क्योंकि उनका फंड्स कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ जा रहा था। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन द सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, बेसिकली द US banking collapse, because this was one of the biggest bank which we if you're talking about the biggest bank, then regional space mein this was one of the biggest bank, and if you're talking in comparing all other banks, then I think it was around 15th or 16th largest bank. So guys, thank you so much for watching this video.